And good morning, everybody. Today I'm going to speak with you on career opportunities for MSc and PhD students in overseas universities. I know since last couple of months you have been locked down to your respective home and शायद आप दुखी होंगे, चिंतित होंगे कि हमारी एग्जाम कब होगी, एग्जाम के बाद हमारा हमारे हमारे लिए करियर ऑप्शंस क्या होंगे एंड काफ़ी दिनों से लेक्चर्स हो नहीं रहे हैं, इसलिए शायद आपका मॉरल भी कुछ डाउन हुआ होगा क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपकी बाकी है, उसकी प्रिपरेशन तो शायद आप कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका मॉरल बढ़ाना ज़रूरी है एंड देयरफॉर टुडे आई थॉट I should tell you what kind of options you will be having after completion of your MSc and PhD. Friend, let me tell you right in the beginning, there are plenty of options available for your career after completion of MSc. If you don't want to do PhD, still you are going to have wonderful options. Now this particular lecture, because I'm not going to tell you because like career options are going to be in a number of directions. But today I thought let me focus on what kind of options you will be having in overseas university. The reason why I have decided to speak on this issue today is in India, I know there are good number of reputed university even in India as well, wherein we can have a wonderful infrastructure, state-of-the-art facilities for teaching learning process. We have got wonderful manpower as well. But those kind of institutes are very limited in number. Most of the universities in India, they are struggling with, they are having lack of infrastructure for one or other reason. There are a number of reasons rather. One of the major reason has been the funding, because most of the state universities and central universities, particularly state universities, have very limited funding. As a result of that, they don't have adequate infrastructure for teaching learning process as well as R&D activities as well as R&D activity. And therefore, today I thought let me introduce you what kind of options you will be having in foreign universities after completion of MSc as well as PhD. Fan, whenever we are talking about the career opportunity, we need to we should be very we should be well prepared for that. I would like to bring to your kind notice one of the very important concept. The concept is आप जब अपने आप को कहीं अ, अ, अपने आप को जब आप मान लो आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है एज एन एम्प्लॉय, और आप किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी स्टूडेंट और पोस्ट डॉक स्टूडेंट इन द कैपेसिटी ऑफ पीएचडी स्टूडेंट एंड पोस्ट डॉक स्टूडेंट आप ज्वाइन करना चाहते हो, then at that time you should be like mentally prepared for that. You need to know what kind of expectation those institutions will be having from you. Moreover, जब कोई भी इंस्टीट्यूट किसी स्टूडेंट को उनके पास पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं, पोस्ट डॉक के लिए एनरोल करते हैं और कोई एम्प्लॉयमेंट देते, मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर और सिमिलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो ये देखेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि आफ्टर having like after employing this particular XYZ person, whether he is going to provide me the value addition. So value addition is going to be very important. And in order to provide value addition to your job, to your work, which you are going to do once you employ, but it could be employment, or you could be a PhD student or PhD student in one of the reputed laboratories in the world. At that time you need to you need to be very careful. What I mean to say is, I'm going to tell you this particular important concept: employee mindset versus entrepreneur mindset. What I mean to say is, most of the organization, if you just do the quick survey, most of the organization, you will find that there are two kinds of people. What are those? Like one category of people is ordinary people who always have a very conventional, traditional employee mindset. And another category of people would be, they will be like extraordinary people. They will have always like out of box thinking.
I would say they will have entrepreneur mindset. The one of the key problem it's not only India, across the globe, that most of the organization, they have like more number of people having a very conventional mindset, very traditional mindset, I would say a employee mindset. Now if you are having very conventional mindset, very traditional mindset, then it will be really difficult for you to develop yourself. And moreover, you will not be able to, if you are having conventional mindset, you will not be able to develop that institution, the institution where you will be joining as either as a PhD student or postdoc or employee. And therefore I would request you to have a entrepreneur mindset. उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा. जैसे कि मान लो आप एक PhD स्टूडेंट हो, या पोस्टडॉक स्टूडेंट हो, या एम्प्लॉई हो, आप यू मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर और सिमिलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंस्टीट्यूशन. मान लो आपने आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आप एंट्री करते हो. एंट्री करते समय आप अगर देखते हो कि भाई जाते ही कुछ स्टूडेंट है जो आपस में लड़ रहे हैं, रास्ते पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है, there are some people like lower grade people, they are not working properly. तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है, because this work has to be done by a head of the department, or this work has to be done by principal of the college. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. हम कभी भी अधिकार तो हम चाहते हैं, हम राइट चाहते हैं, but we don't want to take any responsibilities, we don't want to take any accountability. Same thing is true with HODs as well. मान लो मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में HOD हूँ, तो मैं I will be accountable, I will be responsible in my own department. लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ, अब मैं डिपार्टमेंट के बाहर यूनिवर्सिटी की किसी और डिपार्टमेंट में या चलते समय कहीं और अगर मुझे कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस मेरे सामने अगर दिखाई देते हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे ऑलवेज थिंक इन कन्वेंशनल मैनर. वो कहेंगे, वो सोचेंगे कि भाई नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये तो आइदर रजिस्ट्रार का काम होगा, या तो वाइस चांसलर करेंगे, या तो जो भी XYZ पर्सन होगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, you need to consider you as a responsible person, whether आपकी अपॉइंटमेंट उस काम के लिए हो या ना हो, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए PhD स्टूडेंट, एज ए पोस्टडॉक स्टूडेंट और एज ए एम्प्लॉई जिस इंस्टीट्यूट में मैं आया हूँ, तो दिस इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू मी, ये मेरा घर है. तो इंस्टीट्यूट को अगर हम अपना घर मानना शुरू करेंगे, तो अपने आप हम एम्प्लॉय माइंडसेट के बाहर आएंगे. हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मींस मैं हर बार ये सोचूंगा कि इस इंस्टीट्यूट को मैं कल एक स्टेप कैसे आगे लेकर जाऊं. इंस्टीट्यूट को कल मैं एक स्टेप कैसे आगे निकल जाऊं. इसका मतलब ये कि एज एन टुडे, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, you need to always keep your institution in your mind, and for that purpose you need to always have entrepreneur mindset rather than employee mindset. एंड ट्रूली स्पीकिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा रिजल्ट भी हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है. आप अगर कन्वेंशनल माइंडसेट रहेगा तो आपके रिजल्ट भी बहुत ही आम रिजल्ट रहेंगे. बट इफ यू आर थिंकिंग इन डिफरेंट वे, if you are having if you are an extraordinary person, if you think yourself as a leader, if you think yourself as an entrepreneur, then आप कुछ अलग सोचेंगे, and definitely your results are going to be extraordinary. And therefore मुझे फिर से कहना है कि हमारी जो सोच है वैसे ही हमारे रिजल्ट रहेंगे, इसलिए हमें सोच को बदलना पड़ेगा. And therefore मुझे ऐसा लगता है कि before we go for any employment, जैसे कि कहीं पर भी आप जाने से पहले आपकी सोच को बदलिए, आपका माइंडसेट आप पूरा चेंज करिए. एंड whenever you are entering in that institution, आप ये समझ के चलिए कि मेरा है. अभी बाकी लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली पूरे लगन के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं काम करूंगा. So this is what the extraordinary, this is what the entrepreneur mindset is. And therefore my friend, what we need to do is, before choosing any career, before whenever you are going to join any institution, you should join that institution with this mindset. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको अपना SWOT एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है,
क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपको कितने स्टूडेंट को, कितने एम्प्लॉइज को ज्वाइन होने के बाद, जैसे कि मैं मान लो किसी इंस्टीट्यूट को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करता हूँ, या किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी स्टूडेंट एज ए पी इन द कैपेसिटी ऑफ पीएचडी स्टूडेंट मैं ज्वाइन करता हूँ, या पोस्ट डॉक बोलकर ज्वाइन करता हूँ, तो अगर मैं पूछूं कि भाई वेदर यू वांट टू बी सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ योर टेन्योर, answer would be obvious yes. Everybody will, nobody is, nobody will like to test the test of failure. Everybody would like to have the success. अगर आपको सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, आपको अगर सक्सेस चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शॉक एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने के पहले अपना खुद का शॉक एनालिसिस होना बड़ा जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि नैक बेंगलोर ने, मतलब नैक नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल जो बेंगलोर का है, उन्होंने हर इंस्टीट्यूट को अपना शॉक एनालिसिस करने के लिए कहा है। इट इज मैंडेटरी, दे हैव मेड इट मैंडेटरी। मैं कहता हूं कि फॉरगेट अबाउट इंस्टीट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल हैज टू डू हिज और हर ओन शॉक एनालिसिस। मैं तो थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टुडे आई एम मेनली एड्रेसिंग स्टूडेंट, देयरफॉर आई वुड लाइक टू एडवाइस स्टूडेंट टू डू समथिंग इन एडिशन टू शॉक एनालिसिस, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा करने के लिए कहूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि किसी भी लैब लेबोरेटरी को, किसी भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को, कहीं पर भी ज्वाइन होने के पहले आपको क्या करना है, अपने आप को परखना है, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ज्यादा मेरे स्टूडेंट को ज्यादातर बताता हूँ कि देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने आप को समझो। अपने आप को समझो मतलब एक डायरी लो, एक पेन लो, और अपने घर में बंद कमरे में अपने आप को बंद कर लो। एंड देन यू स्टार्ट आस्किंग। अपने डायरी में हर स्टूडेंट के पास 2 डायरीज होनी चाहिए। पहली डायरी ये है कि इन दैट फर्स्ट डायरी आई विल टेल यू द व्हाट शुड बी देयर इन फर्स्ट डायरी। तो पहले डायरी में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप याद करो कि राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव कमिटेड। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये गलत काम किया, तब तक हम वो गलती करना बंद नहीं करेंगे। एंड देयरफॉर we need to tell ourselves that yes, these are the mistakes I have committed, and therefore what you need to do is, the very first thing that you need to do is you need to start writing the number of number, I mean like the kind of mistake you have committed. आप याद करिए, right from your childhood पीछे जाइए, जितना पीछे जा सकते आप जाइए। अब देखिए कि आपने अभी तक आपके लाइफ में क्या क्या गलतियां की है, what kind of mistake you have committed, and those mistake you start writing down। जो भी मिस्टेक है आप, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि आप ये कभी भी नहीं समझना कि ये डायरी आपको किसी और को बतानी है, क्योंकि अगर आप ये मानकर चलेंगे कि ये डायरी आपको किसी को बतानी है, तो आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी लाइक, यू विल बी लाइंग। तो इसलिए आपको ये डायरी अपने पास ही रखनी है। एंड आप रिकॉल करिए कि क्या क्या गलतियां आपने की, और लिखते जाइए, लिखते जाइए। वो हो सकता है 1 पेज हो, 2 पेज हो, 3 पेज हो, 10, 15, 20, मे बी लाइक 50, यू नेवर नो, बट वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। उसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ये दोहराएंगे, अपने आप को बताएंगे कि यस, ये गलतियां मैंने की है। जब हम ये गलतियां मैंने की है एडमिट करेंगे, तो कल से हम गलतियां करना बंद कर देंगे, बिकॉज दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन द पाथ ऑफ ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो पहले अपने आप को समझना शुरू करो, देखो कि आपने क्या गलतियां की, नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट राइटिंग डाउन व्हाट काइंड ऑफ वीकनेसेस यू हैव। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो पूछते हैं कि बेटा बताओ आपकी क्या वीकनेसेस है। तो बच्चों को बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उन्होंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, अपने आप को कभी परखा ही नहीं। इसीलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेकंड बात ये होगी कि आप यू स्टार्ट राइटिंग डाउन द योर वीकनेसेस। आप देखिए 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, व्हाटएवर, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन दोस वीकनेसेस। थर्ड आइटम होगा, स्टार्ट राइटिंग डाउन योर स्ट्रेंथ। आपके बल स्थान क्या है, राइट। आप क्योंकि ऐसा दुनिया में कुछ स्टूडेंट आते हैं और कहते कि सर आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ विथ मी। नो, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई बंदा नहीं है इस लाइफ में, इस दुनिया में, कि जिसके पास कोई अपने स्ट्रेंथ नहीं, राइट। हो सकता है शायद अपने आप को आपने परखा नहीं होगा, इसीलिए आपको आपके स्ट्रेंथ क्या है पता नहीं। इसलिए अभी तो वही तो सबसे पहले करना है, आपका करियर शुरू करने के पहले वही तो आपको करना है। तो यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, स्टार्ट राइटिंग डाउन स्ट्रेंथ्स। कितने स्ट्रेंथ है आपके, आप लिखिए, राइट। एंड देन सेकंड नेक्स्ट वुड बी, अभी आपके मिस्टेक हो गई,
आपके वीकनेसेस हो गए, आपके स्ट्रेंथ हो गए. नेक्स्ट वुड बी देयर शुड बी टू डिफरेंट प्लानिंग. वन वुड बी शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू हाइड योर वीकनेसेस. मैं क्यों बता रहा हूँ, वीकनेसेस हाइड करना सही बात नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म प्लानिंग. क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए इस दुनिया में अगर आपके वीकनेसेस आप अगर एक्सपोज करोगे तो पीपल आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू. पीपल आर गोइंग टू, आई मीन, आपको वो समझना पड़ेगा, आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा कि आपको कुछ दिनों तक शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास कि you will be able to hide your weaknesses. So this is going to be short term planning. So write down what is going to be your short term planning to hide your weaknesses. And then long term planning would be you should have a long term very systematic planning to eradicate your weaknesses. This is very very important. क्योंकि कुछ weaknesses ऐसे होते हैं कि उसको कभी कभी मतलब सालों लग जाएंगे आपको weaknesses कम करने में. जब तक आप weaknesses आप अपने अपने eradicate नहीं करोगे तब तक आप आपके weaknesses छुपाइए. क्योंकि देर आर मेनी पीपल सक्सेसफुल. मैं आपको बताऊं कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड फेलियर पर्सन वुड बी द फेलियर पर्सन वुड नॉट बी एबल टू हाइड हिज वीकनेसेस. सक्सेसफुल पर्सन वो अपने वीकनेसेस को छुपा सकता है. इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको दो प्लानिंग होनी चाहिए आपके, शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू हाइड योर वीकनेसेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू इरेडिकेट योर वीकनेसेस. नेक्स्ट पॉइंट होगा आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को आप कैपिटलाइज कैसे करोगे. सो write down a short term as well as long term planning. There should be two, short term as well as long term planning to capitalize on your strength. क्योंकि यहाँ पर भी दो टाइप के प्लानिंग क्यों चाहिए. शॉर्ट टर्म प्लानिंग कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे कि मान लो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और and then you can speak very nicely, your English is really good, you can speak nicely, you have stage career, so stage courage I mean to say. So क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग योर एमएससी, ड्यूरिंग योर पीएचडी, ड्यूरिंग योर स्टूडेंटशिप, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आइडेंटिफाई सम प्लेटफॉर्म so that you can show yourself, you can show your stand, so that you will be able to like enhance your moral, right, confidence I mean to say. इसलिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने के लिए. एंड देन दिस इज व्हाट यूर आप देखिए सॉक एनालिसिस में आपके क्या है, स्ट्रेंथ आ गई, वीकनेसेस आए, अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी उसके ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटीज होगी. जो मैंने कहा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो आप मैंने कहा कि दो जो आपकी प्लानिंग होगी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू कैपिटलाइज ऑन वीकनेसेस, दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी. एंड चैलेंजेस क्या होंगे, जो आपकी वीकनेस है, वीकनेसेस के आपके चैलेंजेस क्या रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि जो वीकनेसेस है अकॉर्डिंगली दो प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू हाइड योर वीकनेसेस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू इरेडिकेट योर वीकनेसेस. दैट वुड बी योर चैलेंजेस. उसके अलावा एक ये होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप इस मतलब आप क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो सकता. देखिए मैं ये बताऊंगा आपको कि एवरी डे आई मीन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे, जैसे छोटे बच्चे के साथ ये बहुत बार होता है कि जैसे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब स्कूल के वो जो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है. जब वो सेकंड में जाता है तो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है. जो थर्ड में जाता है तो कहता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है. सो स्टूडेंट्स आर आई मीन योर गोल में कीप ऑन चेंजिंग. उसके रीजन ऐसा है कि आज आपके जो वीकनेसेस है हो सकता है शायद कल वो स्ट्रेंथ में बदल जाए. एंड देयरफॉर टुडे ऑन द बेसिस ऑफ योर टुडे सॉक एनालिसिस आपका ये गोल होगा, लेकिन कल आपके जो वीकनेसेस है सब स्ट्रेंथ में आपने कन्वर्ट कर दिए, आपके गोल चेंज हो गए. सो आपका गोल आपके बदल सकते हैं. इसलिए आज आपके बेस्ड ऑन योर सॉक एनालिसिस व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर गोल, वो आप फिक्स करिए. एंड टुडे टुमारो आप चाहे तो उसको बदल सकते हैं. इट नीड नॉट बी, मतलब आप चाहे तो फिक्स रख सकते हैं या बदल सकते हो, बट दिस यू नीड टू डू. तो क्या करना है सॉक एनालिसिस के लिए, आपने जो मिस्टेक किए, आप जितने भी गलती आपने किए हैं दैट यू नीड टू राइट. सेकंड होगा कि आपके वीकनेसेस, थर्ड होगा आपके स्ट्रेंथ, फोर्थ होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू हाइड योर वीकनेसेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू इरेडिकेट योर वीकनेसेस. फिफ्थ होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ. एंड देन आपके गोल होंगे, शॉर्ट टर्म गोल एंड देन अगेन लॉन्ग टर्म गोल. गोल में भी आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा, लॉन्ग टर्म गोल होगा. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट to be successful in your career, whatever it could be. It could be your PhD tenure, it could be your postdoc tenure, it could be your employment in the capacity of assistant professor. आपको ये ज्वाइन करने के पहले अपने आप को समझना बड़ा जरूरी है. दूसरा एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज काइजन. व्हाट इज काइजन? काइजन बेसिकली जापानीज बिजनेस फिलोसफी. क्या है काइजन? स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट.
अब देखिए कि एक समय था कि काइजन हमारे इंडिया में कोई सोचता नहीं था, एक समय था, because it started from Japan. मतलब earlier Japanese used to implement this not only in like industrial sector but in academic institution as well. Now in India, not only India but across the globe, everywhere as far as industry is concerned, they started adopting this Kaizen concept. आप जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपको Kaizen competition दिखाई देंगे, क्योंकि देयर लाइक द कंपनी के ओनर जो है हर इसको मतलब राइट फ्रॉम सुपरवाइजर टू टॉप मैनेजर सबके लिए एक टारगेट दिया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम सुपरवाइजर, आई एम वर्किंग ऑन वन पर्टिकुलर मशीन एंड दैट मशीन इज गोइंग टू प्रोवाइड लाइक 100 प्रोडक्ट्स. एक कुछ मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के 100 प्रोडक्ट्स एक दिन में मैं उस मशीन में मैं निकालता हूँ. So my boss is going to tell me, fine, today this year you are producing 100 products throughout the day. I want Kaizen. You need to adopt, you need to do some sort of innovation. You need to think कि आज आप 100 निकाल रहे हो, मुझे नेक्स्ट ईयर ये 100 के 110 चाहिए और 120 चाहिए या 150 चाहिए. So it means you need to think very seriously कि मेरी इम्प्रूवमेंट कैसी हो. जो जिस काम मतलब जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है उस काम में मैं इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ. Same thing is, I mean, what I mean to say is this Kaizen concept need to be adopted even in educational institution, even in academic institution as well. और छोड़ दीजिए कि आपके बॉस क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए कि आपके एम्प्लॉयर क्या कहते हैं, बट you should accept that, you should adopt that. And every time आप देखिए कि आपका टारगेट रखिए कि इस साल का टारगेट आपका क्या है, आप गोल फिक्स करिए. इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म गोल होना बहुत जरूरी है. एंड देन अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर के आपके गोल पिछले साल से अलग होने चाहिए. अलग होनी चाहिए मतलब इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. इफ यू आर एबल टू डू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन योर डे टू डे एक्टिविटी, आपको बताऊं कि आप वो इंस्टीट्यूट में बड़े प्यारे एम्प्लॉय होंगे. आप अगर स्टूडेंट होंगे तो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉपुलर स्टूडेंट टू योर टीचर्स, टू योर पीएचडी एडवाइजर, आपके जो एम्प्लॉयर होंगे. तो मैं कहता हूं कि ये करना बड़ा जरूरी है. Then let us start. तो जैसे कि अपॉर्चुनिटीज बताने से पहले मुझे लगा कि आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने ये आप सब कुछ बताया. So now let us think of what kind of opportunities you are going to have after MSc. तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले there are, I mean, जैसे मैंने बताया कि अगर इंडिया में अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आफ्टर MSc और BSc आपको अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना है एमएस और पीएचडी करने के लिए, तो which country would you like to prefer? So obviously most of the student will your response would be UK, US, Australia, France, Germany, and so on and so forth, right? And like topmost choice would be United States of America, US, and UK. Most of the time English speaking country. Yes, my advice would be you should, to begin with, if you really want to go there, I mean, do your MS or PhD outside, I would also advise you to go to English speaking country, so that I mean, क्या होगा ना आपको एक, क्योंकि सिंस हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो थोड़ा कामियां होगी, कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगे हमारे लैंग्वेज में, हमारा एक्सेंट सही नहीं होगा. बट इफ यू स्पेंड कपल ऑफ इयर्स देयर, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी करेक्टेड. इसलिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि यू शुड थिंक ऑफ going to English speaking country for MS and PhD. तो बताऊं कि वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है. कंप्लीटेड 4-year डिग्री, वो डिग्री आपका मतलब ये नहीं इंजीनियरिंग डिग्री, कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगा. इट कुड बी फ्रॉम इंजीनियरिंग, इट कुड बी फ्रॉम साइंस, इट कुड बी फ्रॉम वेटरनरी, इट कुड बी फ्रॉम मेडिकल. लेकिन हमारे पास आप सभी को पता है कि साइंस का डिग्री हमारे पास 3 साल का ही है. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 4 साल का डिग्री. देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज वेयर बीएससी 4 साल का है, या एमएससी में या तो आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए. अगर आपका 4 साल नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, आपके 3 साल बीएससी हो गए, 1 साल आप एमएससी कर सकते हैं, या तो एमएससी पूरा कर सकते हैं, या एमएससी का 1 साल करके भी जा सकते हैं. बट यू नीड टू हैव अ जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, एंड टोफेल. सो आपको अगर इंग्लिश यूएस जाना है, यूके जाना है, एंड दैट टू अ गुड यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में जो पहले 5 में है, पहले 10 में है, या पहले 100 में है, उस यूनिवर्सिटीज में आपको अगर जाना है तो यू नीड टू हैव अ गुड जीआरई स्कोर एंड टोफेल स्कोर.
This is one. What is option? Other option is completed 3-year degree course BSc from NAC accredited A grade institute with GRE and TOEFL. अगर मान लो आप BSc किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, ऐसे कॉलेज से किया हो कि जिनको NAC का A ग्रेड मिला है, then still you can be eligible candidate for MS. So either 4-year degree non accredited कॉलेज होगा. अगर आप BSc किया होगा आपने 3 साल का डिग्री किया होगा, लेकिन जिस कॉलेज में आपने किया वहां पर अगर NAC A ग्रेड मिला होगा तो still you are eligible. Fellowship on an average मैं बताऊं आपको, it varies from university to university. On an average 2500 USD इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ज्यादातर. और आपको मैं बताऊं कि आई हैव स्पेंड आई मीन गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन यूएस. 2500 USD इज मोर देन इनफ. लेट मी टेल यू, स्टूडेंट के लिए आई मीन वहां रह के आपके पेरेंट्स को मतलब यू कैन डू योर ओन एक्सपेंसेस एंड आपके पेरेंट्स के लिए भी आप कुछ पैसा भेज सकते हो, क्योंकि ये जो आप GRE और TOEFL के साथ जाओगे आपको इट्स नॉट ओनली फेलोशिप, आपका जो ट्यूशन फीस है उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगा. या तो 100% एग्जाम्पशन होगा या तो 90% होगा. इट डिपेंड्स ऑन द स्कीम. एंड देयर आर मेनी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन एंड एशियन यूनिवर्सिटीज. वहां पर जो है ना ये IELTS एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं. IELTS क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. सो अगर आप TOEFL नहीं हो तो IELTS पे भी आप जा सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर यूएस और यूके में they prefer TOEFL because TOEFL is a little bit tougher examination as compared to IELTS. लेकिन मैं अगर बताऊं आपको कि इतने सारे एशियन यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि उसमें एग्जांपल देता हूं, यूरोपियन यूनिवर्सिटी का सबसे पहले एग्जांपल देता हूं मैं. फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है. देयर आर मेनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम यूके. देयर आर मेनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी. वहां पर आप TOEFL ना भी हो, GRE ना भी हो, लेकिन IELTS हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है. There are many Asian universities like countries है like जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ताइवान है. ये छोटे छोटे कंट्रीज है, लेकिन आपको बताऊं वहां पर टीचिंग लर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है. लेट मी टेल यू, क्योंकि आई स्पेंड आई मीन 3-4 मंथ इन साउथ कोरिया. साउथ कोरिया में बताऊं आपको कि हमारे पास जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वैसे एवरी आप अगर किसी मेट्रो स्टेशन के बाहर आएंगे, मतलब एवरी आफ्टर एवरी अल्टरनेट मेट्रो स्टेशन आपको यूनिवर्सिटी दिखाई देगी. Out of curiosity, I have visited many universities during my tenure at South Korea. मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं देखना चाहता था कि इतने सारे यूनिवर्सिटी जिनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, बट दे आर हैविंग wonderful infrastructure which is at par with IITs. आपको बताऊं कि जैसे कि हमारे पास लिमिटेड IITs है. IIT का सभी स्टूडेंट का सपना होता है या तो बीटेक बीटेक करो, या तो एमटेक करो, या तो PhD करो. लेकिन हमारे पास आई मीन एट द मोस्ट 2 to 3% ऑफ student they are getting opportunity to do pursue education in those high profile institution. लेकिन आप अगर फॉरेन में जाओगे, साउथ कोरिया बड़ा कंट्री नहीं है, बट फॉरगेट अबाउट साउथ कोरिया यार, ये ताइवान इज अ वेरी टाइनी कंट्री. मराठवाड़ा उसका जियोग्राफिकल एरिया आप देखोगे तो इट्स नॉट मोर देन मराठवाड़ा, आपको बताऊं ताइवान का. लेकिन वहां के आपको यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे आप तो आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी अमेज्ड. लेट मी टेल यू, आपको बताऊं कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमने एक क्लीन रूम बनाया. इट इज 20 by 20 क्लीन रूम ऑफ 10,000 क्लास. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 25 लाख. लेट मी टेल यू कितना, 20 by 20 का 10,000 क्लास का 25 लाख. वहां पर मैं ताइवान जैसी कंट्रीज में मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज है कि मैंने देखा कि उनके पास यार 100 by 100 के एक नहीं 4-4 5-5 क्लीन रूम, and that too a class of 1,000. You see like how state of that facilities they are having. मोरोवर आपको बताऊं कि हमारे पास सभी स्टूडेंट को पता है कि मान लो साइंस के स्टूडेंट को पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर SEM यूज करना है, FESM यूज करना है, XRD यूज करना है, तो आपको देखने को भी नहीं मिलते. There are very few institutions where you will be able to see those instruments. Forget about उसको ऑपरेट करना तो आगे की बात है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट PhD के लिए डेटा प्रोड्यूस करते हैं उस मशीन से, मतलब सैंपल भेजते किसी यूनिवर्सिटी में, सैंपल आता है, इंटरप्रेट करते हैं और PhD कर ले लेते हैं. जब वो PhD का प्रेजेंटेशन होता है तो उनको पता ही नहीं रहता कि XRD क्या है, कभी उन्होंने हैंडल नहीं किया होता क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं. मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग स्टूडेंट, लेकिन क्या करेंगे. लेकिन आप अगर जाओगे
फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ये सब, मतलब इवन एशियन यूनिवर्सिटीज में, तो आपको एवरी मास्टर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, एवरी मास्टर स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव अपॉर्चुनिटी टू हैंडल द इक्विपमेंट। अब मोरोवर हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे मास्टर कोर्सेस और वहाँ के मास्टर ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में, इवन आई मीन नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूके यूएस, इवन एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी आप अगर जाओगे तो इवन एमएससी में आपको बताऊं, हमारे पास ऑन एन एवरेज एमएससी अगर करना है बच्चों को तो स्टूडेंट हैज टू अर्न अप्रोक्सीमेटली 100 क्रेडिट, 2 साल में 100 क्रेडिट करना है। मतलब बच्चे और मतलब बच्चे 2 साल में पढ़ते ही रहते। हमें ये लगता है कि बच्चे तो ये भी पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, and then they are overloaded like anything. In most of the foreign countries, let me tell you, my friend, the credit requirement for completion of master courses is around 25 to 30, around 25 to 30. So they can, I mean, they will be having option. मतलब वो 20-30 क्रेडिट के कोर्सेस 2 साल में कभी भी करते, ज्यादातर बच्चे पहले साल में कर लेते, and second year they are going to spend only for research. नए एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि कुछ रिसर्च ओरिएंटेड डिग्रीज भी होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन पैटर्न में कुछ खामियां हैं, होपफुली ओवर द टाइम वो एजुकेशन पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। एनीवे, सो दैट इज व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू टू डू, यू नो, लाइक गो टू फॉरेन कंट्रीज for doing either, if possible, go there for MS. If not, you can go there for PhD and enrich yourself. Then as far as the best universities are concerned, there are, I mean, let me tell you, like what you need to do is, if you really want to go to foreign universities for doing MS and PhD, आपको जो है वर्ल्ड रैंकिंग देखनी है। सबसे पहले देखना है कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी का, एंड मोरोवर जिस सब्जेक्ट में आप MS या PhD करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग क्या है, आपको वो भी देखना है। मतलब आपको क्या करना है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखनी है, एंड सेकंड ओवरऑल रैंकिंग भी देखनी है, एंड सेकंड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी देखनी है, एंड देन यू शुड सेलेक्ट द यूनिवर्सिटीज। आपको आपके पास कैसे है ना, आपके पास अगर जीआरई और टोफेल का स्कोर अगर अच्छा है तो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, अगर नहीं है तो ऑप्शन कम रहेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि अगर इवन इफ यू डोंट हैव टोफेल एंड यू नो जीआरई स्कोर, स्टिल यू कैन गो टू यूएस। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। So these are some of the universities as I have quoted here, but there are many universities. These are topmost universities in the world, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो लाइक मतलब you will be like very happy person. Very recently, in the month of January this year, I went to Cambridge for doing one 15 days course, and then I have seen like many, you know, वो सब colleges में देखे उनके, जहाँ पर हमारे रामानुजन पढ़े, मनमोहन सिंह पढ़े, मैंने न्यूटन की लैब देखी। तो आई हैव ट्रिनिटी कॉलेज गया मैं, न्यूटन की लैब देखते, वहाँ रामानुजन साहब ने भी काफी समय बिताया। सो सेंट जॉन कॉलेज, जहाँ पर राजीव गांधी पढ़े, जवाहरलाल नेहरू पढ़े। तो इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ऐसा लगता है कि यार they are class universities having wonderful infrastructure, and moreover students have lot of opportunities to learn, and therefore my suggestion would be, and ऐसा नहीं कि हम जा नहीं सकते, कोई भी जा सकता है। let me tell you, हमें कभी-कभी बहुत बार हमारे स्टूडेंट, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट, ये लेक्चर मैंने खास स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नो फॉरेन में जाना है तो खाली एक तो पैसा लगता है, एंड दूसरा आईआईटी के बच्चे जा सकते हैं, या तो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां से लोग जा सकते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको बताऊं, वो तो लोग जा ही सकते हैं, लेकिन आप भी जा सकते हो, एब्सोल्युटली आप जा सकते हो। आपको अगर जाना है, आप बीएससी में हो, तो अगर इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग जीआरई एंड टोफेल राइट फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, आप वहां चांस चलेगा आपका, ठीक है, फाइन, नो इशू। आफ्टर एमएससी यू कैन गो, आफ्टर एमएससी यू कैन स्ट्रेट वे ज्वाइन फॉर पीएचडी। आप जीआरई टोफेल अच्छा करिए, यू कैन ज्वाइन फॉर पीएचडी, यू नीड नॉट डू एमएस अगेन देयर। आप बीएससी के बाद जा रहे हो तो एमएस करिए, आप एमएससी के बाद जा रहे हो सीधा आप पीएचडी करिए। सो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। एक एग्जांपल मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम या सिटी नहीं बताऊंगा। व्हेन आई वाज इन यूएस इन 2006-7, I met one student. He was, I mean, very close to one of my relatives from India. तो वो मेरे रिलेटिव्स में मुझे फोन करके बताया कि देखो ये XYZ स्टूडेंट लॉस एंजलिस में आया है, वो आपसे मिलना चाहेगा। So then I was living in Riverside, which is around 80 kilometers from Los Angeles. I was
working there as a postdoc initially in the University of California, Riverside campus, and then I worked there as a visiting scientist later on. तो जब वो बच्चा मेरे पास मिलने आया, तो I thought कि he must be in the University of UCLA, University of California, Los Angeles. तो मैंने पूछा कि बेटा आप कहाँ पर पढ़ते हो? तो कहने लगा किसी ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम उसने बताया कि जो उसका नाम मुझे पता भी नहीं था, जिसका कोई वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि यार तू क्यों आया है? ये यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है। Why you came all the way from India to US? तो इतना पैसा कहाँ से लाया तूने? तो उसने मुझे बताया, वंडरफुल स्टोरी है, आपको एनकरेजिंग हो गया, आपको बड़ा इंस्पायर हो गया आप इस स्टोरी से। तो बच्चा था इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग के बाद में किसी कंपनी में काम किया 2-3 साल, कुछ पैसा कलेक्ट किया। उसके पिताजी टीचर थे, कुछ पिताजी से लिया, कुछ अपने जॉब से कलेक्ट किया, एंड देन ही ऑप्टेड टू, उसके पास कोई जीआरई टोफेल का स्कोर नहीं था। मैंने पूछा उसको कि व्हाट इज योर जीआरई स्कोर, व्हाट इज योर टोफेल स्कोर? कहने लगा कि नहीं, नाइदर ही आई मीन उसके पास ना तो जीआरई था, जीआरई का स्कोर था, ना तो टोफेल का स्कोर था। तो मैंने पूछा कि फिर आया कैसा तू? तो कहने लगा कि ये यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन व्हाई आई ऑप्टेड, उसने कहा कि देखिए सर कि मैं यहाँ आया हूँ, ये क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है इसलिए मुझे जीआरई टोफेल ना होती हुए एडमिशन मिला। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू सी, मैंने ट्यूशन फीस पे किया, मैंने जो भी 2-3 साल का मेरा पेमेंट था, मैंने ट्यूशन फीस पे किया, राइट? नाउ एज पर एज डेली एक्सपेंसेस आर कंसर्न, आपको शायद ये पता होगा कि मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में 6 के 6 दिन आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हार्डली लाइक 3 या 4 दिन जाना पड़ता है आपको। तो ही सेड लाइक एवरी वीक 2 days and every day 1 hour I am going to 2 days full and 1 hour every evening I am going to work in 24/7 score। आप देखिए, आप ऐसे ऐसे स्कोर होते अपने स्टोर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में कि जो कि 24/7 ओपन होते हैं। तो ही सेड लाइक आई एम गोइंग टू वर्क, ही सेड ही स्टार्टेड वर्किंग। तो अगर आप वो कह रहा था कि मैं काम करता हूँ 1 घंटा एवरी डे, आई एम गेटिंग $50, $50 2 दिन के हैं, एंड $100 मुझे 2 दिन के मिलते हैं। सो एवरी वीक ही यूज्ड टू अर्न लाइक अराउंड $300। एवरी वीक $300, महीने की कितने होंगे? $1,200। और वहां रहने के लिए तब की बात कहता हूँ कि अगर आप बच्चे अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे, हार्डली $400-500 used to be more than enough for monthly expenses, you see। एंड देन उन्होंने कहा कि मैं एक बार यहाँ से डिग्री ले लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ यूएस, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल अप्लाई फॉर द आई विल जॉइन पीएचडी फॉर बेटर यूनिवर्सिटी, विद बेटर यूनिवर्सिटी। यू सी, अगर डिटरमाइन हो तो आप मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए ये एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन अगर आप रियली पैशनेट हो कि आपको जाना ही है, तो देयर आर ए नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। एंड उसके अलावा मैं कुछ ऑप्शन और भी बताता हूँ कि ये नेहरू फुलब्राइट फेलोशिप है, कि जो कि आप जब आप दिस इज ओनली फॉर यूएस। नेहरू फुलब्राइट नेहरू और नेहरू फुलब्राइट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस फेलोशिप जो है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है, पीएचडी के लिए भी है, पोस्ट डॉक के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, जूनियर टीचर के लिए है, सीनियर टीचर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पर आप देखिए, आपको बताऊं कि आप जैसे कि मान लो आप इंडिया में कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, एक सेमेस्टर आप वहां जाना चाहते हो, यू कैन गो। 1 साल जाना चाहते हो, इट डिपेंड्स, बिकॉज एट द मोस्ट 1 साल तक ये फेलोशिप मिल सकती है आपको। तो ये दिस कुड बी लाइक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एमएचआरडी का जो अलग एक तो एमएचआरडी का एक फेलोशिप होता है, आपको बताऊं, आप एवरी ईयर एमएचआरडी का एक फेलोशिप होता है, वहां ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब मैं यूएस में था तो देयर वर मेनी स्टूडेंट दे वर ऑन एमएचआरडी फेलोशिप। 2000 यूएसडी आपको मतलब स्टूडेंट को मिला करती थी इंडियन गवर्नमेंट से। दैट इज आल्सो देयर, बट दिस इज समथिंग लाइक हियर यू आर गोइंग टू गेट बेटर ऑफ आई मीन सैलरी इन फेलोशिप। तो यहाँ पर क्या होता, इसमें आपको मतलब टू एंड फ्रो राउंड ट्रिप का आपको एयरफेयर भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, एंड देन अलॉन्ग विथ वहाँ के एक्सपेंसेस जो है फेलोशिप, आप जितने साल के लिए, जितने महीनों के लिए रहना चाहोगे, अकॉर्डिंगली आपको फेलोशिप भी मिलेगी। एंड दिस इज आपको बताऊं कि ये 2021 का एडवर्टाइजमेंट था। आपको बताऊं कि अभी अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक आया नहीं है। जनरली ये अभी तक आता है रहता है जनरली, बट सिंस द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक, थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अभी आ जाएगा, आने में होगा। तो अगर ये होगा 21-22 के लिए,
अब देखिए इसमें आप देखोगे कि इसमें मास्टर स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर स्टूडेंट के लिए, पोस्ट डॉक के लिए है, एकेडमिक प्रोफेशनल के लिए है एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी है। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये चार्ट में नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम ये, तो मतलब ये यूएस का मैंने एग्जांपल रखा है यहाँ पर स्पेसिफिकली, बट इट्स नॉट ओनली फॉर यूएस, ऑल लाइक दिस इज एप्लीकेबल फॉर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यू नो, कनाडा। बहुत सारे बच्चे कनाडा में है हमारे, तो वहां पर जैसे मैंने बताया आपको, ये मैंने आपको बताया कि आपको 4 साल का डिग्री चाहिए, या तो एमएससी चाहिए, एंड अगर बीएससी अगर आप हो 3 साल का, तो आपको वो बीएससी जो है यू शुड कंप्लीट दैट बीएससी फ्रॉम NAC accredited A grade यूनिवर्सिटी और कॉलेज, एंड देन जेआरई टोफेल एंड यूनिवर्सिटी। आपको अगर अच्छा स्कोर है तो आपको फीस वेवर मिलेगा। फीस वेवर स्टार्ट फ्रॉम 100% टू, मतलब डिपेंड, आपका स्कोर अगर अच्छा है तो आपको 100% फीस वेवर मिलेगा, अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा कम मिलेगा अलॉन्ग विद फेलोशिप। देन ये कॉमनवेल्थ का कुछ फेलोशिप है, जैसा कि जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी काफी बच्चे हैं हमारे, न्यूजीलैंड में भी कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज है, देयर आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। कॉमनवेल्थ का आप देख सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखकर खोलेंगे कॉमनवेल्थ फेलोशिप, यू विल गेट द डिटेल्स। देन इरास्मस मुंडस फेलोशिप है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। इरास्मस मुंडस के बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे स्कीम्स है। इसमें भी जैसे मैंने बताया कि बीएससी के स्टूडेंट जा सकते हैं, एमएससी के स्टूडेंट जा सकते हैं, आप पीएचडी करने के लिए जा सकते हैं, आप पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं, देयर आर अगेन ऑप्शंस, टीचर्स भी जा सकते हैं इसमें, तो दिस इज आल्सो अनदर ऑप्शन। एक आपसे यूरोपियन यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल मैं बताऊं, जब मुझे याद है 3-4 साल पहले मैं फ्रांस गया था, तो पेरिस से पास में एक रीम्स नाम का एक सिटी है, वहां पर एक यूनिवर्सिटी में हमारा एक वर्कशॉप था, इंटरनेशनल वर्कशॉप था। देन व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटीज, आई कुड सी, जैसे कि आपको बताऊं, अभी आजकल हमारे इंडिया में ये जो लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन जो बाहर जो सन्नाटा दिखता है, वैसा सन्नाटा ज्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज या यूएस, यूके में दिखता है। आई एम रियली सरप्राइज। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, वैसे भी लोग, पीपल आर वेरी डिसिप्लिन मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफ कोर्स इनडिसिप्लिन लोग सब तरफ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी डिसिप्लिन। इन स्पाइट ऑफ दैट, कोरोना वायरस बुरी तरफ से फैला है यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में। आई डोंट नो व्हाई इट इज स्प्रेड लाइक दिस, अदरवाइज दोस पीपल आर वेरी डिसिप्लिन पीपल। तो मैं बता रहा था कि जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने देखा कि स्टूडेंट ही नहीं थे, मतलब स्टूडेंट दिखा। हम अगर हमारे पास अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यू विल लाइक आवर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल बी ओवर फ्लडेड विद स्टूडेंट, लेकिन वहां जाओगे आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आपको स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। And then I went ahead and had an interaction with couple of professors. अब उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो आप हाउ डू यू एनरोल पीएचडी स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि हम इवन फॉरगेट अबाउट टोफेल, जीआरई, आईएलटीएस। उन्होंने कहा कि इवन अगर कोई एम्बिशियस स्टूडेंट है, अगर किसी स्टूडेंट ने ड्यूरिंग एमएससी, क्योंकि हमारे पास एमएससी के प्रोजेक्ट होते हैं, ड्यूरिंग एमएससी प्रोजेक्ट इफ ही और सी come up with one good publication, still we are going to accept he or she as a PhD student along with fellowship and fees waiver, you see. So there are many universities in Europe, in Asia like Japan, South Korea, Taiwan, कि आपके पास अगर बहुत अच्छा स्कोर ना भी हो या स्कोर ना भी हो, लेकिन आपने एमएससी के दरमियान आपने अगर अच्छा प्रोजेक्ट किया हो, अच्छा पब्लिकेशन निकला हो, तो आपको वैसे भी आपको पीएचडी का एडमिशन मिल सकता है। मैं तो मेरे स्टूडेंट को कहता हूं कि जब भी आप एमएससी फर्स्ट ईयर में आते हो, यू फोकस ऑन योर रिसर्च प्रोजेक्ट वेरी सीरियसली एंड मेक इट श्योर कि बाय द एंड ऑफ योर एमएससी, जब आप एमएससी पूरा करोगे तो कम से कम आपको एक रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल में निकलना ही चाहिए। एंड इट इज क्वाइट डूएबल, लेट मी टेल यू, इट इज क्वाइट डूएबल, इट इज वेरी मच डूएबल। आप अगर फर्स्ट, जैसे कि हमने हमारी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हमने एक बड़ा पैटर्न, एक बड़ा यूनिक सा पैटर्न शुरू किया है। What we do, we teach student in first semester what is research methodology. वो भी बुकिश रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं, हम ये एक्चुअल बच्चों ने कैसा करना, मतलब जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए, ना लिटरेचर रिव्यू कैसे करना चाहिए, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कैसे लिखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी चाहिए, एक्सटर्नल प्लान कैसे होना चाहिए। सो रियल एग्जांपल आई एम टीचिंग बिकॉज माई सेल्फ
is teaching involved in teaching of research methodology. तो बच्चों को हम 1 क्रेडिट का कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, बच्चों को बताते हैं कि भाई आपको रिसर्च कैसे करना है, एंड सेकंड सेमेस्टर में एक्चुअल प्रैक्टिस में बच्चे करेंगे, मतलब दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द बेस्ट जर्नल्स, they are going to identify, select the papers based on their broad topic. They will be doing rigorous, literature review, and they are identifying, like going through the papers, identifying what kind of objectives the investigation have gone through, what are their methodologies, conclusion, interpretation, what are their pitfalls, and then they are making statement. Yes, this is what. These are the pitfalls we observe, and then this is what our plan is, so that we can inculcate novelty. So this is how the students are doing project. So if you can do project like this, let me tell you, हमारे डिपार्टमेंट में तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट करने के लिए बच्चे आते हैं, so by the end of their MSc they are coming up with at least one publication, and if they are really interested, जैसे कि हमारे पास काफी अच्छे फैसिलिटीज है पीएचडी करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू, मैं आपके पंख काटना नहीं चाहता हूँ, आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू, I can assist you, I can get you connected. Fortunately, I have got good collaboration with 5 to 6 universities, like in US, Australia, Japan, South Korea, Taiwan, France. तो बच्चों को मैं सब यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, and then those who are interested they are going there, and even after PhD also they can go there for postdoc. तो मैंने कहा कि आपकी ये सब ऑप्शंस है, आपके कॉमनवेल्थ फेलोशिप है, इरास्मस मुंडस है, जॉइंट, एंड देन देयर आर मेनी. एंड देन अगर आपको जैसे कि मान लो बाहर एमएस के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है, आप एमएससी कर रहे हो, you are really desperate to go to, let us say, whatever, Japan for example, right, for PhD, लेकिन आपको पता नहीं है वो यूनिवर्सिटी कैसी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि those universities are regularly organizing summer school program. तो ये नाम मैंने बताया क्योंकि इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है. तो ये जो यूनिवर्सिटीज है इनके पास कोलैबोरेशन है, एवरी ईयर हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे स्टूडेंट, मतलब एमएससी स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट भी जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर मैं एमएससी स्टूडेंट को प्रमोट करता हूँ, so that they can go there and see like what kind of facilities are there, and then if they are interested they can join for PhD. तो ये समर स्कूल प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर भी, मतलब समर स्कूल प्रोग्राम में आपको कुछ करना नहीं होता है, आप जब अप्लाई करोगे, आपको हमारा कोलैबोरेशन है लेकिन कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप अप्लाई करोगे ना, आपका क्रेडेंशियल अगर आपका पीजी का अच्छा हो तो आपको टू एंड फ्रो एयरफेयर भी मिल सकता है, वहाँ के एक्सपेंसेस भी मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत 10-20 हजार आपको खर्चा करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस यू कैन हैव इट फ्रॉम देम. मोरओवर, अगर मान लो वो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है. इफ यू आर एमएससी स्टूडेंट एंड इफ यू गॉट सेलेक्टेड, लेट अस से फ्रॉम टोकुशिमा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यू कैन अप्लाई टू डीएसटी. आपको टू एंड फ्रो पैसा मिलेगा, जाने का किराया मिलेगा, वहां रहने का आपको उस यूनिवर्सिटी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी ये यूनिवर्सिटीज पार्शियल फंडिंग करती है, वो कहते हैं कि भाई आप यहाँ आइए, आपका लोकल हॉस्पिटैलिटी हम करते हैं, इंटरनेशनल फेयर आप करिए, देन यू कैन गो टू डीएसटी और यूजीसी एंड हैव सम फंडिंग. बैंक का लोन भी ले सकते हैं आप. देयर आर मेनी ऑप्शन, इफ यू आर डेस्परेट देयर आर मेनी ऑप्शंस. एंड देन मैं कुछ ऐसे फेलोशिप बता रहा हूँ क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा कि ये पुरानी है 1920, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि उसका आप ये जो एलो मार्क जो है आप देखिए उसमें क्या है. दीज आर डिफरेंट फेलोशिप, लाइक कॉमनवेल्थ फेलोशिप है, उसका एवरी ईयर कब आता है इसका एडवर्टाइजमेंट, अगस्त के लिए. तो 19-20 का ये है, लेकिन एवरी टाइम, एवरी ईयर in the like August, in every August every year this advertisement is going to be floated. So आप देख सकते हैं. जैसे ये दूसरा न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप एवरी मार्च ये फ्लोट होगा. नेहरू फुल ब्राइट जैसे मैंने बताया ये जनवरी में फ्लोट होता है, एवरी जनवरी. ये दूसरा फेलोशिप है और ये जो है साल में 2 बार फ्लोट होता है इसका एडवर्टाइजमेंट. सो देयर आर, ये थर्ड वर्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस है. This is again another fellowship. So there are many. This is from Brazilian government. So you can see this is floated every August or March. This is ये जो fellowship throughout the year form accept करते हैं. So I thought like let me tell you. और आपको मैं आगे बताऊं कि आप अगर गूगल में टाइप करोगे कि the fellowship for joining MS और PhD in foreign universities for Indian student, आप अगर ये टाइप करें गूगल में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. ये तो मैं जस्ट आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूँ, लेकिन देयर
you will get many options. DAD ये जर्मनी का फेलोशिप है, ये भी आप जा सकते हैं. देखिए एवरी कॉल ओपन्स ट्वाइस इन ईयर, जुलाई और जनवरी. This is also another very prestigious Alexander Humboldt Fellowship from Germany. ये भी बड़ा prestigious fellowship है. This is Marie Curie. This is also very prestigious fellowship. Swiss government का fellowship है. So there are, I mean, this is one more fellowship. You know, this is Ireland. This is government of Ireland postdoctoral fellowship. मतलब इसमें कुछ fellowship डॉक्टरल डिग्री के लिए है, कुछ पोस्टडॉक के लिए है. तो आप अगर दिस इज अनदर ऑप्शन. तो इसके आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो, फॉरगेट अबाउट दिस, मैं तो स्टूडेंट को कहता हूँ कि वंस यू हैव कंप्लीटेड एमएससी एंड इफ यू आर रियली डेस्परेट टू गो टू एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी, ओके, सो आई मीन ऑफकोर्स आपका होराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए. जैसे कि आपने ऐसा नहीं कि मुझे यूके में जाना है या यूएस में जाना है. You can start, you know, searching from USA, UK, Australia, Germany, you know, all Asian universities. आप इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि what you need to do. Once you complete your MSc, forget about complete your MSc. Whenever you are in last, you know, in the last semester of your MSc, you start identifying the universities which is related to your area of interest. क्योंकि आप कहीं पर भी जाना सही नहीं होगा. आपका area of interest क्या है वो आपको identify करना पड़ेगा. You identify universities, you know, and start sending them email. Let me tell you, start sending them email. Every day, आप 5-6 email करोगे. Let me tell you, within 1 month, you are going to have 2-3 invitations. You are going to have 2-3 invitations. Even if you don't have GRE, TOEFL, and IELTS. If you are having GRE, TOEFL, and IELTS examination, then obviously you will have option. लेकिन उसके वो नहीं भी रहा. But if your credentials are good, if you are having at least one research paper from MSc, and then still you have lot of options. Japan का है JSPS, and this is one fellowship from Indian government, Jane Tata Endowment Fellowship, right from, you know, 1 लाख से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक फेलोशिप देते हैं वो, for very shortlisted, very few students for doing postdoc in the foreign countries. टर्की की है, and so there are many fellowships. This is just a, I mean, I thought like I should give you a glimpse of, you know, like options rather. What are the options available? This is UF postdoctoral research fellowship for South African and foreign student. This is only for South African and foreign student. Foreign student means any student, right? So, and then this is for international student in Finland. ये फिनलैंड के लिए है. दिस इज ऑफकोर्स चाइना. अभी इसके बाद में मतलब कोविड-19 के बाद में कोई चाइना जाना पसंद नहीं करेगा. लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, चाइना में भी देयर आर मेनी गुड यूनिवर्सिटीज. दे प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग एज फार एज साइंस एंड एकेडमिक इज कंसर्न. दे हैव, आप पहले 100 यूनिवर्सिटीज आप अगर देखोगे तो वी डोंट हैव एनी सिंगल यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट टॉप 100 बट यूनिवर्सिटीज. बट चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं, ताइवान के हैं, साउथ कोरिया के है, जापान के है, हमारे नहीं है अनफॉर्चुनेटली. although we have got very, you know, reputed IITs है हमारे पास, but somehow they are not able to figure out in first 100. So there are many other options also, like ये कुछ options है. इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के एक्सचेंज प्रोग्राम है विद फॉरेन एकेडमिक्स. इसमें आप देखोगे तो आप देखो दिस इज एक्सचेंज प्रोग्राम, राइट. एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है कि आप थ्रू योर टीचर यू कैन गो. तो इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आपको बायलैटरल प्रोग्राम होता है, तो आपको एक प्रपोजल लिखना पड़ता है. प्रपोजल में फिर इंडियन स्टूडेंट कुछ जा सकते हैं और उसी कंट्री के भी स्टूडेंट आ सकते हैं. इसलिए आपको आपका जो पीएचडी एडवाइजर है, आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो आपका पीएचडी एडवाइजर के थ्रू आप फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं. आप देखिए ये टिपिकल, ये तो एडवर्टाइजमेंट ये इस पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, ब्राजील, चाइना, फ्रांस. लेकिन आप अगर देखोगे, आप डीएसटी का वेबसाइट अगर फ्रिक्वेंटली अगर आप विजिट करोगे, so after every month you are going to have one or other bilateral options available. So you can apply jointly and then visit those universities. साइंस इंजीनियर, अब देखिए एसीआरबी का आपको पता होगा कि ओवरसीज पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है, ओवरसीज डॉक्टर फेलोशिप भी है, आपको शायद पता होगा. तो आप मतलब अपार्ट फ्रॉम एमएचआरडी, ओके, अपार्ट फ्रॉम एमएचआरडी, दिस इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो एसीआरबी डीएसटी का है. वहां पर आप ओवरसीज पोस्टडॉक 1 साल के लिए जा सकते, या तो 3 साल के लिए आप पीएचडी के लिए भी जा सकते. देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल.
राइट। ACRB की फेलोशिप अदर देन यूएस के लिए भी है, मतलब देर इज वन फेलोशिप ACRB पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप ओनली फॉर यूएस, एंड second is apart from US, I mean like other than US. So there are two options available. So जो स्टूडेंट PhD कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट डॉक के लिए वंडरफुल ऑप्शन ही हो सकता है। वुमेन के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आपको पुराना है, आई एग्री, लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो वुमेन स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, इंडो यूएस फेलोशिप है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप इंडो यूएस फेलोशिप में इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इवन इट इज फॉर वर्किंग वुमेन एज वेल। आप पीएचडी कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे होंगे तो आप 1 साल के लिए जाके आप काम कर सकते हो, जैसे डैड में, जैसे कि देयर आर मेनी, जेएसपीएस है जापान का, डैड है जर्मनी का, इंडो यूएस फेलोशिप है यूएस का। सो लाइक दैट देयर आर मेनी फेलोशिप ड्यूरिंग पीएचडी। मान लो आपको 1 साल के लिए जाना है, आप जा सकते हो। आप आई मीन योर पीएचडी डिग्री इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बट 1 साल के लिए आप जा सकते हो, वहां पर काम कर सकते हो, अपने आप को एनरिच करिए, बाहर वापस आइए, एंड देन यू स्टार्ट adopting those practices here. So this is STEM is one kind of fellowship for women. ओके, क्योंकि डेट गई लेकिन ये हर साल आती रहेगी, इसलिए डेट गई इसका मतलब ये आउटडेटेड ऐसा मत समझिए। मैंने सोचा कि आज although this is not open as of today, but I thought like लॉकडाउन के दरमियान आप अगर ये पढ़ोगे, देखोगे, आप सर्व करोगे तो हो सकता है शायद कल वो एडवर्टाइजमेंट आ जाए। सो यू नीड टू बी आई मीन आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि देखिए सबमिशन डेडलाइन पिछले साल का 17 जून, इसका मतलब जून के आसपास ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, मई एंड में या जून में आएगा, आपको सबमिट करना है। सो यू कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस एडवर्टाइजमेंट। वैसे ही ये कॉल है अब जैसे कि अगर ये जैसे कि ज्यादातर मैंने साइंस के स्टूडेंट को एड्रेस किया, लेकिन सोशल साइंस के स्टूडेंट जो है, ICSSR जो है, इट इज मेड फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट। ये देखिए जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, JSPS। अब JSPS का कोलैबोरेशन ओनली फॉर खाली DST के साथ नहीं है, उनका कोलैबोरेशन ICSSR के साथ भी है। इसका मतलब क्या है कि जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है, they can also visit Japan for doing PhD or postdoc। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि एग्जांपल बताया मैंने कुछ, आप जैसे कि मैंने साइंस के स्टूडेंट को बताया कि एवरी आई मीन अल्टरनेट डे यू शुड विजिट the website of DST and ACRB. Like that, I would advise all social science students to visit ICSSR website every alternate day, so that you will be able to know what kind of fellowship options are available. क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ हमारा टाई अप नहीं है इंडिया के साथ में, तो ICSSR का भी। तो ICSSR का आप देखोगे तो you can go to those universities under bilateral program। वैसे भी वो जो मैंने बताया Erasmus Mundus में भी it's not only for science student, Erasmus Mundus is for social science student as well, it is open for everybody। of course साइंस के स्टूडेंट के लिए ऑप्शन थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो ये जो डेडलाइंस है, ये डेडलाइंस पिछले साल की है, बट सिमिलर काइंड ऑफ ये मतलब ICSSR जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ज्वाइंट कॉल जो ICSSR विद JSPS, इसका पिछले साल का डेडलाइन था 4 सितंबर 2019। मतलब अगर ये 2021 के लिए था तो 22 के लिए क्या होगा, डेफिनेटली अभी आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा। सो इफ यू सी द ICSR वेबसाइट, ऑब्वियसली you will see that one or other day you will see that the advertisement is going to be floating there, and then you can go to that. So this is the I mean ACRB website. I thought like I should give you the screenshot of ACRB website. So every day, not every day, but at least every alternate day, students should visit ACRB website and see what kind of options, what kind of fellowship available, so that you can keep yourself updated, and whenever you have options, you can really take advantage and avail those opportunities. Apart from those, there are some opportunities for women scholars, right? ये कुछ example है। वैसे कि देखिए कैम्पबेल फेलोशिप फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च ऑन वुमेन इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो अभी ये जो है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो है अभी ओपन नहीं है, बट दीज काइंड ऑफ फेलोशिप्स आर अवेलेबल। तो दोज हु आर रियली डेस्परेट टू गो अब्रॉड, मतलब जो MSc के स्टूडेंट है, PhD के स्टूडेंट है, तो आप देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस है। यू शुड कीप ऑन सर्चिंग दीज। वैसे ये है, ये कौन सा है, ये UW मतलब American Association of University Women। You can see this is again specifically available for women। You can see the amount also, and then this was उसका एक कॉल था, ये ICSSR और JSPS का, ये मैंने बताया आपको, ये ओपन कॉल था तब।
So at the end, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि if you are really desperate to visit, I mean to do MS or PhD in any one of the foreign universities, in which I mean those university could be from either from US, UK, Australia, you know, like all those English speaking country, और यूरोपियन कंट्री जो इंग्लिश वहां पर नहीं बोली जाती, जैसे कि फ्रांस है, यू नो, जर्मनी है, यू नो, स्पेन है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए आपको शायद डर लग रहा होगा इस कंट्रीज के नाम सुनते हुए, बट लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स ये दिन निकल जाएंगे, आप ज्यादा मायूस ना होना। I'm damn sure within very short interval of time this coronavirus is going to be completely wiped out from India. You will be very free, and then you can think of, you know, searching these options. आपको अगर इस foreign opportunities के, if you really, if you are having any questions, you can note down my email ID mdsirsad@gmail.com. You can note down my WhatsApp number also, 9422291987. I will be very happy to address your queries. At the end, my friend, I wish you very very good luck. आप अभी आपके घर में होंगे, मैं चाहता हूं कि ये जो समय है आप उसका सही तरीके से यूटिलाइज करिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपकी स्टडीज करिए, नेट आपके पास अवेलेबल होगा, आप देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, एंड एट द सेम टाइम आप आपके घर में ही रहेंगे, अपने आप घर के बाहर मत निकलिए, आप यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड एट द सेम टाइम दिस इज, आई मीन, मैं बार बार कहता हूँ कि दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम because of this coronavirus pandemic we are going through, but at the same time, I mean, मैं fortunate नहीं कहूँगा, but still this is an opportunity for you to spend a very very quality time with your family members. आप उसके समय, क्योंकि हमें इतना समय मिलता नहीं है, now you are really fortunate to spend good time, quality time with your family member, spend good time with them, have interaction with them, so that whatever barriers which were there, the barriers, you will be able to vanish out those barriers, and you will be very happy. And you remember, if you are happy, you can make others happy. Thank you very much, my friend. If you are having any question, you can send me email or you can call me on WhatsApp. Thank you very much. God bless you.